Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Now come to your lecture of general knowledge. It's your lecture number 13. I had already explained you all the main concepts of unit number 11, the human body. Today we will do the reading of this chapter. First of all, come towards these key words. You have to pronounce it twice and also learn the spelling of all of them. Chest, breathe, rib cage, accidents, circulatory system, smoothly, stomach. Now come to unit number 11, the human body, page number 36 of your books. Open your books, page number 36. Today we will do reading of this book. Look at this. Here is a picture of this skeleton. It's our skeleton. Our body is made up of 206 bones and they are hard and form the skeleton which give the shape to our body. Look at this. ये skeleton है, इसमें different bones हैं और ये bones सब मिलके क्या बनाती हैं skeleton, और skeleton से क्या होता है, it gives shape to our body. Now come to the first paragraph of your chapter. Our body is made up of different parts like head, neck, chest, arm and legs. The body can walk, run, sit and stand. The arms can lift and carry things. Look at this. अब हमारी बॉडी में नेक है, चेस्ट होती है, आर्म्स होती हैं, लेग्स होती हैं. लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने स्कूल आना होता है आजकल कॉपीज़ कलेक्ट करने, आपके पेरेंट्स ने आना होता है और कॉपीज़ वापस रिसीव करने, तो वो किससे चल के आते हैं? येस, दे यूज़ देयर लेग्स. और जब आप लोग काम करते हो, राइटिंग करते हो, यू आर यूजिंग योर आर्म्स. तो हम लोग हमारी पूरी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं दे आर डिफरेंट बट ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस. हर बॉडी पार्ट का एक अपना फंक्शन होता है. Now come to this. We have eyes to see, a nose to smell, ears to hear, a tongue to taste, and the skin enable us to feel. They are called sense organ. You have to learn it as your objective. हमारे पास देखने के लिए क्या है? आंखें. फ्रेगरेंस, कोई भी खुशबू सूंघने के लिए क्या है हमारे पास? नोज़. ईयर्स, you are hearing my sound through your ears. A tongue to taste, आपकी मामा ने कैसा खाना बनाया, you are tasting with your tongue. And the skin enable us to feel. लेट्स सपोज अगर कोई चेयर है, हम उसको टच करते हैं अपने हैंड से तो हमें पता चल जाता है अच्छा ये चेयर है. उसके अलावा हम देख भी सकते हैं. तो दीज आर ऑल दी सेंस ऑर्गन्स. सो सेंस ऑर्गन्स आर आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. नाउ कम टू दिस. सम अदर ऑर्गन्स. अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स की. सम अदर ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हमें नज़र तो नहीं आते लेकिन दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन आवर बॉडी. दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. वी कैन नॉट सी दैम बट दे परफॉर्म डिफरेंट टास्क. फॉर एग्जाम्पल द हार्ट पम्प ब्लड एंड द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. अगर हम लोग सांस लेते हैं तो वो हम लोग खुद तो नहीं कर रहे होते, ठीक है, वो हमारे लंग्स कर रहे होते हैं. ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते बट दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस. जिस तरह से हमारा हार्ट है, इट इज़ पंपिंग blood to all parts of the body. Now come to this. A human body is made up of this. A human body is made up of 206 bones. You have to learn it for your objective. They are hard and form the skeleton which give the shape to our body. आप लोग को ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछा जा सकता है, डैश गिव शेप टू आवर बॉडी. यस, स्केलेटन गिव शेप टू आवर बॉडी. Now come to this paragraph. Some bones protect various organs of the body. The heart and the lungs are protected by rib cage. You have to learn it for your objective. The heart and the lungs are protected by the rib cage. The skull protect the brain from the injury in the fall and the accidents. जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर आप लोगों को चोट लग जाए तो हमारा जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. Now come to page number 38, the muscles. First of all, we have
we had discussed about the sense organs, internal organs, bones, skeleton, and the rib cage and the skull in the previous page. Now come to page number 38. The muscles help the body to move smoothly. हमारी bones को the muscles help the bones to move smoothly. You have to learn it as your objective, that the muscles help the bones to move smoothly. There are different systems in the body, such as digestive system, which consists of mouth, throat, stomach, and intestine. It helps to break the food we eat into the substance that can be used by the body. अब हमारे पास मसल्स होते हैं वो बोन्स को हेल्प करते हैं ताकि हम लोग मूवमेंट कर सकें. ठीक, उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि देयर आर द ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी. ऑर्गन सिस्टम्स में एक ऑर्गन सिस्टम कौन सा होता है? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स that work in group and perform the different functions, these are called the organ systems. इसमें एक एग्जांपल क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम की. इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? माउथ होता है, थ्रोट होता है, स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होता है. इनका क्या काम होता है कि जो भी फूड हम लोग खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद वो हमारी बॉडी में यूज़ होता है. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड द वेसल्स. अब सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलर आप लोगों के जहन में आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है? इट सर्कुलेट्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड जाता है वो कौन सा सिस्टम है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होता है. ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. नाउ कम टू योर लास्ट पैराग्राफ. द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन इन विच एवरी पार्ट डज इट्स जॉब. हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह है जिसमें हर पार्ट अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. Our body will remain fit and active if all the part work properly. हमारी बॉडी तब तक अच्छी और बिल्कुल फिट है जब तक हर बॉडी पार्ट जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है. लुक एट दिस पिक्चर. द हार्ट एंड द लंग्स इन द रिब केज. हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है? रिब केज. यू हैव टू लर्न इट फॉर योर ऑब्जेक्टिव. नाउ कम टू लास्ट बॉक्स. डू यू नो? Do you know a broken bone is called a fracture? आप लोगों ने देखा है कि अगर कभी आप लोग बहुत ज़ोर से कहीं ऊपर से नीचे गिर जाओ तो हमारी बोन जो होती है उसमें जो क्रैक आ जाता है, यहाँ पे टूट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर. द डॉक्टर सेट द बोन्स एंड रैप इट इन आ प्लास्टर कास्ट. द बोन मेंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स. ये होता है कि अगर आप लोगों की जो बोन है वो टूट जाए तो क्या होता है? डॉक्टर्स जो होते हैं उस बोन को सेट कर देते हैं और उसको प्लास्टर कास्ट में उसको रैप कर देते हैं और कुछ वीक्स के बाद क्या होता है कि आपकी बोन जो होती है वो जुड़ जाती है. मीन आप लोग ठीक हो जाते हो. यू कैन मूव दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी. यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ पेज नंबर 37 and 38 and also learn the objective. This is your diary. Read page number 37 and 38. I hope all of you understand this. Take care. Goodbye.